I think it's done. Yeah. 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 So, a warm welcome to everyone, and welcome to an amazing session we are going to have today about storytelling. Every life is a story. It's only that how we are able to communicate it and show it to the world. I remember one instance when I first bought a bottle of a deodorant for my wife and I presented it to her, and her reaction was, "Do I stink?" So we can laugh now, but yes, this was a learning for me that you should also be very careful about what you are giving to one. So these are some of the instances. Likewise, it happens. One of the song which I remember, it says, दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अकेली शन्नो नाम उसका. So you see, this is basically a line, but this is also a part of story. It's a world. In that world, there is a student, there is a girl, and the girl's name is Shanno. So this is how it goes. All you need to do is be able to present your story, and every story is marvelous. All you need to do is just present it. Now, what next? Today we have one of the eminent speakers and a storyteller with us, Mr. Hirok Paul, and I'm happy to say that he is a gem in his field. But before we move on, I would like to tell you about the community. The community is authored by the author Sherry. It's his dream, it's his vision, and the community's vision is same as his vision to have 1 million public speakers before the year 2030. So please allow me to say before, because I feel the number will be reached much earlier. So before we commence the session, I would like to tell everyone about author Sherry sir, as we have some new people joining in today. So author Sherry sir is a flamboyant, marvelous motivational speaker and coach, 8 times TEDx speaker, 3 times Joe Stock speaker, author of best-selling internationals, founder and president MS Talks, which has given platform to 20,000 plus people all across. And he is on a mission to create 1 million public speakers by the year 2030. Please join me to give a big round of applause to him. And under his guidance, we are able to come up and form this community. Oh, I missed one thing. He is now 4 generation of authors. Can you imagine? 4 generation of authors. People struggle to be one. He is 4 generation of authors. His dad, a well-known author. Himself, he is. His wife, Madam Kara, and his daughter, all are awesome authors. And they have been filed for the Limca Book of Records for this very special. Yeah. So, may I now introduce you to the speaker of the day, the session host, Mr. Herok Paul, who is going to enlighten us with the storytelling sessions, and he would be also telling us what all ingredients we should put in so that we can have our story presentable, because anything which is not presentable, it can be very good but not interesting for the audience. As somebody had said that there is an ikigai, what is in for the community or what is in for the people. So it is very important to know whatever you are saying, what is there for others to learn from it. So with this, I will request Mr. Paul to take over the stage. Sir, please do. Yeah. Thank you so much, and Deepak and Sherry sir, for this wonderful opportunity. तो चलिए कहानी का सफर शुरू करते हैं एक कहानी के साथ. तो हाजरीन, हुआ यूं कि एक गांव में 2 बला की खूबसूरत लड़कियां रहती थी. नाम था सत्या और कहानी. दोनों इतनी खूबसूरत थी कि एक बार दोनों में बहस हो गई कि मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ. नहीं नहीं, मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ. अरे क्या बोलती है तू, मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ. अब बहस इतनी गर्माहट भरी हुई कि दोनों ने फैसला किया कि इस बात का फैसला तभी होगा जब लोग इस बात का फैसला करेंगे कि हम में से ज्यादा खूबसूरत कौन है.
ये करने के लिए हमें अपने घर से बाहर निकलकर गांव के बीचों बीच जो सड़क है वहां से दूसरी ओर तक चल के जाना होगा। जो सबसे ज्यादा लोगों को अपने पीछे लगवाएगा या जो सबसे ज्यादा लोगों के आंखों को अपनी तरफ खींचेगा वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा। ये बात खत्म हुई कि सत्या ने कहा पहले मैं जाऊंगी। और वो अपनी खूबसूरती से इतराती हुई अपने घर से बाहर निकली और सड़क पर पहला कदम जो उसने रखा, वो लोग जो खेत में काम कर रहे थे, वो लोग जो चाय की दुकान में चुस्की लेते हुए मौसम के बारे में बात कर रहे थे, ना जाने क्या हुआ कि उल्टे पांव अपने घर को चले गए और जाकर गेट बंद कर दिया। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। वो कुछ कदम और बढ़ी, उन लोगों ने अपने गेट के दरवाजे के साथ साथ खिड़कियां भी बंद कर दी। ये तो उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। अब उसके दिमाग में ये डर आ गया कि वो हार जाएगी। उसे कुछ ऐसा सोचना होगा कि उसकी हार जीत में तब्दील हो जाए और ना जाने क्या सोचकर उसने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। ये सोचकर कि लोग उसकी ओर आएंगे, लोग उसे देखेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। तो इक्का दुक्का लोग पेड़ के पास खड़े थे, जो कोने से छुप छुप कर उसे देख रहे थे, जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी लेकिन बाहर थे, वो लोग भी घर के अंदर घुस गए। अब वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था। सत्या को ये बात तो पता चली, वो हार गई। उदास जब वो दूसरी चौराहे पर पहुंची तो वहां पर उसकी दोस्त खड़ी थी, कहानी। सत्या ने अपना लटका हुआ चेहरा किसी तरह उठाया और उसकी आंखों में देखकर कहा, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। कहानी इतराते हुए उसने एक सुंदर सा लहंगा पहना, अपने पांव महावर से रंगे, अपनी मांग में सिंदूर भरा, बिछुआ बांधा, पाँव में उसने इतने सारी अंगूठियां पहनी और एक गंध अपने ऊपर छिड़क कर, लाल चुनरी ओढ़कर, कानों में बालियां डालकर निकल गई बाहर। और निकलते वक्त उसने सत्या की तरफ घूम कर देखा और कहा, ए पगली, अब देख जादू। और जादू ही हुआ। जैसे ही उसने कदम रखा, लोग जो गेट बंद करके, खिड़की बंद करके अंदर घुसे हुए थे, वो बाहर आने लगे। हवा का रुख भी जैसे बदल गया, जैसे वो कहानी की दीवानी हो गई और कहानी को अपनी कहानी कहने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो सारे पागलों की तरह बाहर आकर बातें करते, खिलखिलाते, खुसफुसाते और कहानी को देखकर पागल हो जाते। कहानी एकदम किसी कहानीकार की तरह थी और वो सारे लोग किसी कहानी के पात्र की तरह थे और वो कहानीकार की तरह हर एक को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाती और वो नाचते। एक एक करके सब उसके पीछे हो लिए और सब ने इस बात का कबूलनामा दिया कि भले ही कुछ हो, कहानी से खूबसूरत सत्य हो ही नहीं सकता। जब कहानी इतराती हुई इतने सारे लोगों को अपने पीछे ले लेकर पहुंची अपनी सत्या के पास, तो सत्या दुखी होकर रोते हुए कहने लगी, मैं हारी, तू जीती। कहानी ने उसके कंधे को पकड़ कर कहा, अरे पगली, इसका मतलब ये नहीं तू कम खूबसूरत, बस बात इतनी सी है कि लोगों को सच देखने की आदत नहीं है। नंगा सच तो वो कभी देख ही नहीं सकते। तो अगर तुझे लोगों तक पहुंचना है
बहन, तुझे कहानी का हाथ थामना पड़ेगा, तभी तो लोग तुझे सुनेंगे। और ये कहा, और कहानी ने अपने जेवरात निकाल कर धीरे धीरे सत्या को पहनाए, और दोनों ने जब अपना हाथ पकड़ के फिर दोबारा से उसी चौखट पर अपने कदम रखे, तो जैसे पूरा गांव उमड़ आया और उन दोनों के पीछे इस कदर पागल हुआ जिस कदर वो कहानी के पीछे भी पागल नहीं हुआ था। वो अपना ताल्लुक ढूंढने लगे दोनों से, क्योंकि ये सत्य कहानी थी। तो I hope you like this story. Awesome, amazing. Beautiful. Yeah. So let me share my screen if I can. Yeah, I can. So you guys can see my screen, right? Yeah, great. Yes. So all are storyteller. We are born storyteller. मेरी मैम, मेरी गुरु, जिन्होंने मुझे कहानी कहना सिखाया है, उनका नाम दीप्ति पंत है। वो कहती हैं कि जो बच्चा झूठ बोला है ना एक बार भी अपने जीवन में, वो कहानीकार है। अब ऐसा कोई नहीं जिसने झूठ ना बोला हो। अपनी मम्मी के सामने बहाने तो जरूर सबने बनाए होंगे, कभी ना कभी तो बनाए होंगे, और आज भी बॉस के सामने भी बनाते हैं। तो हम सब कहानीकार हैं। Storytelling is one of the oldest profession. Believe me, one of the oldest profession of this planet Earth. One of the famous quote by Robert: storytelling is the most powerful way to put idea into the world today. And even Dalai Lama said, world does not need doctors much. World does not need engineer much. World need peacemaker. World need storytellers. Storytellers who can send ideas across the world and mesmerize people with the storytelling and sow the seed of purity, happiness. This what we can do because we all are a storyteller. Storytelling करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इमोशंस को जानना। हमारे नाट्य शास्त्र, यानी हमारा जो नाट्य शास्त्र है, उसमें ये लिखा हुआ है कि 9 इमोशंस होते हैं। कौन कौन से? पहला श्रृंगार, लव एंड ब्यूटी। दूसरा हास्य। तीसरा करुणा। जो करुणा होता है, जो एक माँ अपने बच्चे को दिखाती है, वात्सल्य प्रेम, वो। रौद्र। रौद्र का जब भी मैं नाम सुनता हूं तो मेरे दिमाग में शिव का रौद्र रूप सामने आता है। वीर। वीर का, जब मैं वीर का नाम सुनता हूं तो मेरे सामने अर्जुन का नाम आता है। भयानक। भयानक का नाम सुनता हूं तो मेरे सामने शिव का वो भयानक रूप सामने आता है जिसमें उन्होंने तांडव किया था। विभस्त। विभस्त एक वैसा इमोशन है जिसको देखकर हमारी आंखें सिकुड़ जाती है, हमारी नाक सिकुड़ जाती है, हमारा मुंह सिकुड़ जाता है और हमें घृणा आती है। अद्भुत। अद्भुत वो रस है जिसको सुनते ही हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, हमारे नाक के नथुने फुल जाते हैं, हमारे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है और लगता है जैसे हम ग्लो कर रहे हैं। शांत, एक साधु की तरह, आराम से। अब इन सभी 9 रस को समझने के लिए मैं एक लाइन को इन 9 अलग अलग रस में बोलने की कोशिश करूंगा। आप देखिए कैसे। तो सिंपल सी लाइन है, दरवाजा खोल दो। तो सबसे पहले श्रृंगार रस में ट्राई करते हैं। दरवाजा खोल दो, हाथ से।
दरवाजा खोल दो। करुणा, दरवाजा खोल दो। रौद्र, दरवाजा खोल दो। वीर, दरवाजा खोल दो। भयानक, दरवाजा। विभस्त, दरवाजा, दरवाजा खोल दो जल्दी। अद्भुत, दरवाजा खोल दो। शांत, दरवाजा खोल दो। देखा, एक ही लाइन, 9 अलग अलग इमोशन। ये हमारी संस्कृति है, नाट्य शास्त्र। अगर किसी ने इन सब में काबू पा लिया तो क्या कमाल होगा जब आप स्टेज पर होगे। कमाल नहीं, बवाल होगा। इमेजिन करिए, एक ही आदमी 9 अलग अलग इमोशंस के साथ आपको कहानी सुना रहा है। ओ माय गॉड, व्हाट इज नेक्स्ट? सी पिक्चर। तो ये जहां मेरा कर्सर नहीं दिख रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा है क्या? Yes, we can see. ओके, सो ये श्रृंगार रस है, ये हास्य रस है, ये करुणा है, ये रौद्र है। ये कौन सा रस है? एनीवन? वीर रस है, ये भयानक रस है, ये विभस्त, और ये कौन सा रस है? ये है सरप्राइज। अद्भुत, बिल्कुल सही कहा। और ये जो इन सब को बांध कर रखता है, जो कॉमन है, कहा जाता है कि नाट्य शास्त्र में ये सारे मोती हैं अलग अलग रंग के, और जो शांत रस है वो एक धागा है जो इन सभी को बांध कर रखता है। तो दिस इज मदर ऑफ एवरी रस, शांत रस। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज बताइए मुझे। Okay, we good to go then. You're इसके rocking. थैंक यू। तो इसके बाद आता है वॉइस मॉड्यूलेशन एंड विजुअलाइजेशन। आप सबने ध्यान दिया होगा कि जब मैं सत्या की कैरेक्टर को निभा रहा था, उसमें एक हल्का सा पतला सा वॉइस आया था। वॉइस मॉड्यूलेशन हेल्प यू टू डिस्टिंग्विश नॉट ओनली यू, योर ऑडियंस ऑल्सो, कि what is a pace of the voice. Pace of the voice is something which we can add into this voice modulation. इससे आपकी कही हुई बात को अलग से पता चलता है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये वाली जो लाइन थी मेरी, ये यहां पर जोर दिया है मैंने, दैट इज अ वॉइस मॉड्यूलेशन। जब भी आप वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली बातें करते हैं, और नॉर्मली बातों में अगर आप थोड़ा सा भी ऊंचा या नीचा करेंगे तो ऑडियंस जो अभी तक सो रही होगी, हाँ हाँ, जाग जाएगी। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन इज द बेस्ट। विजुअलाइजेशन की सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपको ना कुछ पकड़ना नहीं है, जस्ट ओपन इट। और ओपन क्या, उसको खोल कर रख दो, उसको बांधो मत। जब हम विजुअलाइजेशन को बांधने की कोशिश करते हैं ना, तो वो बनावटी हो जाता है, और बनावटी चीजें अच्छी नहीं होती है ना। नेचर बनावटी नहीं है, कितना खूबसूरत है, राइट? सी, दिस इज अ इमेज। नेवर एवर होल्ड योर विजुअलाइजेशन, कभी नहीं। ये जितना एक्सपैंड होगा, और कैसे इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, रीड मोर एंड मोर बुक्स। नॉट ओनली विजुअलाइजेशन इंक्रीज बाय रीडिंग बुक्स,
actually your voice modulation also increase. Actually you can check your voice modulation in 3 different way. First, जब आप सुबह सुबह उठे होते हैं ना, तब अपनी वॉइस चेक करिए, बड़ी ही अलग वॉइस होगी पूरे दिन के मुताबिक. जब आप कोई किताब पढ़ते हैं 1 घंटे तक, उसके बाद आप अपनी वॉइस को चेक करिए, तभी भी आपकी वॉइस अलग होगी. रात को जब स्लीपी मोड में आपका फ्रेंड आपको रात के 2 बजे फोन करके ये पूछे, अरे भाई सो रहा था क्या, तब आपकी वॉइस अलग होगी. So we are born storytellers. We have voice modulation in us. और बस उसे जानना है और उसको यूज करना है. Bang! You are a storyteller. These are the storytelling techniques which is very famous, and I hope you must have heard some of them. Anaphora. Anaphora is a storytelling technique which is used by many politicians when you need to uh, put idea or put a one phrase into their mind. You just keep on repeating. One of the best example is I don't able to remember the president's name. I think it's American president. The very famous speech is "I have a dream." Martin King Luther, yeah, the wonderful storyteller, and he used that technique on that day, anaphora, when he keep on repeating this line, "I have a dream." Filmmaking is very famous. We all watch movies now, web series. Puppetry is one of the oldest form of storytelling. We use puppetry to tell us stories. It's very famous among kids love this kind of storytelling. Dastan Goi is Dastan Goi is flourish in India in around 14th century. It was invented in Persia. वहां से यहाँ पर आई. और the first dastan which ever recited among the people is Dastan-e Amir Hamza, one of the oldest dastan. हालांकि हम हमेशा से कहानियां ही सुनाते आ रहे हैं. इवन गुरुकुल बहुत वक्त पहले, जब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं होते थे, स्टोरी टेलिंग इज द वे ऑफ टीचिंग पीपल, टीचिंग चिल्ड्रन. By telling stories we teach morals, by telling stories we teach science, by telling stories you can teach math even, and many more. There are so many type of storytelling. So for till अभी तक कोई भी क्वेश्चन है, आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चन. हेरोग, मेरे एक दो सवाल है, मैं आपसे इसके बाद पूछूंगा. जस्ट कंप्लीट एंड आई विल आस्क यू. So I think it's अच्छा, फिनिश कर लिया आपने? जी जी बिल्कुल. अच्छा, ओके, ठीक है. चलो फिर मेरे सवाल है 2-3. सब बढ़िया. First of all, what a marvelous value creation you have done so far. I'm really amazed. मैं अमेज तो खैर क्या होना था, मुझे तो पता था हेरो का है तो कुछ धमाका करेगा, बम बम फोड़ेगा, यहाँ पे धमाका होगा, और हो गया धमाका. अच्छा, आप बात सुनो. काम की बात ये है यार, देखो हम सारे ना लर्नर्स हैं, ठीक है. अभी मैं वैसे कोचिंग करता हूँ, सिखाता हूँ आपकी तरह, लेकिन मैं ना अभी लर्नर बन के बैठा हूँ. अभी आप मेरे गुरु हो. अब आप मुझे ये सिखाओ या मुझे ये बताओ, या हमारे सबके बेनिफिट के लिए ये बताओ, मतलब ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए क्या टूल्स और इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी तो हम कंसेप्चुअल नॉलेज की तरफ चल रहे थे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे टूल बता दो, क्योंकि आई एम श्योर यू हैव योर लिमिटेशंस टू शेयर थिंग्स, बट आप कोई भी एक ऐसा टूल बता दो जो इतना आसान हो. आपको अपने शहरी सर ये तो कोई भी यूज कर लेगा यार, ये तो आप सीख ही लो. अभी कोई एक ऐसा टूल, ये आपका बहुत बड़ा हमारे पे गिव अवे हो जाएगा. सर आई थिंक सबसे अच्छा टूल जो है ना, वो वॉइस मॉड्यूलेशन है जी. क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी वॉइस ना हर वक्त अलग होती है जी. जब हम बच्चों से बात करते हैं अलग है जी. है ना. जब हम अपने बॉस से बात करते हैं तब अलग होती है जी. है ना. हमारा जब कोई सामने दोस्त होता है एकदम लंगोटिया यार, तब अलग होती है.
जब हम एक्साइटेड होते हैं तब अलग होती है। बस हमें ना उस चीज का कहाँ मेरे ख्याल से स्टोरी टेलिंग करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है जो मैं यूज करता हूँ। मैंने बहुत सारी तो नहीं, मैंने कहानियां करी हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी की मैंने कहानियां करी है 3-4, सादत हसन मंटो जी की कहानी मैं अभी भी प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैंने करी है। तो जो चीज मुझे समझ आती है कि जब आप कहानी को बार बार पढ़ते हैं ना, तो आपको ना अपने आप दिमाग में लगता है कि अच्छा ये कैरेक्टर ना ये इस तरीके से बोलेगा। अच्छा। आप उसको बार बार पढ़ेंगे। एक्चुअली हिंदी साहित्य की, जी आई डोंट नो अबाउट इंग्लिश लिटरेचर क्योंकि मैं कभी उतना जी गया नहीं हूँ डीप जी डाइव। हिंदी लिटरेचर की सबसे खूबसूरत बात यह है जी कि आप उसको जितनी बार पढ़ेंगे ना, जी जितनी बार, आपको हर बार कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो ना आपको पढ़ने के बाद दिमाग में आएगा, यार ये तो यार अलग ही निकल गया यार। हम्म, और आप जितनी बार पढ़ेंगे आपके दिमाग में आएगा, अच्छा हम्म, तो ये कैरेक्टर इस हालात में होगा और इस वक्त इसकी ऐसी आवाज होगी और उसके चेहरे पर शिकन ना ऐसी होगी। बहुत तो बढ़िया, ये आपको समझ आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और ये नाट्य शास्त्र, ये नाट्य शास्त्र का ताल्लुक थिएटर से है या ये कुछ अलग अलग है, या और क्या नाट्य, ये एक फॉलो अप क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र स्टोरी टेलिंग का बेस है क्या? सर जो नाट्य शास्त्र को अगर हम अलग अलग करें तो इट्स नृत्य। एक्चुअली मैं ये कहूंगा जितने भी आर्टिस्टिक चीजें हैं वो जी सब नाट्य शास्त्र से जुड़े हैं। जी सारे के सारे नाट्य, इवन जो मैंने आपको अभी अभी मैंने एक कोट लिखा था ना कि स्टोरी टेलिंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म। तो जी, अच्छा मुझे बात। लगता है ये मेरा हाइपोथेटिकल वो इमेजिनेशन है कि पहले ना लोग डांस के थ्रू कहानियां व्यक्त करते थे। जी जी तो आप इसको ऐसे कंसीडर कर लिए कि जब नाट्य शास्त्र क्रिएट हुआ तब, जैसे मुझे नाचना नहीं आता तो जी, आई यूज दोज इमोशंस इन टेलिंग अ स्टोरी। अच्छा, जैसे किसी को कहानी कहना नहीं आता तो जी ही इज वेरी एक्सप्रेसिव इन थिएटर, ही कैन यूज दैट आल्सो इन देन। एंड किसी को एक्टिंग करना भी नहीं आता, कहानी कहना भी नहीं आता, ही इज जी वेरी गुड इन पेंटिंग। जी तो जी, वो अपनी पेंटिंग में रौद्र रस दिखा सकता है ना, वो अपनी अपने क्ले मॉडलिंग में रौद्र रस दिखा सकता है ना। जब हम जी गुस्से में आते हैं तब हम क्ले पर इतना बुरी तरह करते हैं, जब हमें कोई सौंदर्य वाली चीज बनानी होती है तो हमारा हाथ जो होता है वो खुद ही इतना मुलायम हो जाता है कि वाह। जी जी, तो इट्स अ बेस, आपने सही कहा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और मेरे जैसे आदमी को तो ईमेल लिखना आता है, मैं तो अपना रौद्र रूप फॉन्ट का साइज कैप्स कर देता हूँ, तो वो तो उसी में समझ जाता है भाई ये अभी एंगर है, इसका समझ जाओ। अब तो मेरी स्टोरी टेलिंग वही हो जाती है। सो आई गॉट योर पॉइंट। कितना बढ़िया फंडामेंटल आपने एकदम से दे दिया, और ये आपके लेवल का स्टोरी टेलर ही दे सकता है। अमेजिंग। थैंक वी यू आर सो रियली मच सर। ग्रेटफुल टू यू, आप आए हो मेरी रिक्वेस्ट पे। मैं आपका एहसानमंद हूँ, आपका अरे बहुत प्लीज सर, शुक्रगुजार हूँ, आपका अरे नहीं शुक्रगुजार हूँ। प्लीज ऐसे मत बोलो सर आप। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। और एक्चुअली मैं हर जगह कहता हूँ कि मैं ना एक ऐसा बंदा हूँ कि मुझे ना बस लोग दे दो कहानी सुनाने के लिए और मैं पहुंच जाऊंगा। अरे, और आप इतने हम्बल कैसे रहते हो यार? मतलब मेरे को ये समझाओ एक बारी। ये देखो, ऐसा एक कलाकार के पास कला जब आ जाती है ना, तो उसके पास एक सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या आता है? पैसा कमाना चैलेंज नहीं होता उसके लिए, पैसा तो बाय प्रोडक्ट बन जाता है। ह्यूमिलिटी चैलेंज होता है। ह्यूमिलिटी कैसे मेंटेन होगी, ये मैंने आपके अंदर देखी है। आप कैसे अरे लेके आए हो इतनी छोटी उम्र में? मैं तो हैरान भी होता हूँ कई बारी। पता नहीं आप कुछ बताना चाहोगे इसके ऊपर? नहीं, मतलब ये सवाल नहीं है, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मैं जब अभी मैं 28 का हूँ, तो जब जी मैं 25 मैंने क्रॉस कर लिया था तब जी तक मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या करने वाला हूँ। जी क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब मुझसे अभी भी नहीं होती, उस वक्त भी नहीं होती थी। मैं अपना मत्था मारता रहता था और मुझे समझ नहीं आता था कि यार मैं जी क्या करूंगा क्या करूंगा। जी। और फाइनली एक दिन मुझे पता चला, ओ माय गॉड, आई एम स्टोरी टेलर। तो हम्म, 25 साल मैंने इस चीज का इंतजार किया है सर, और क्या आई बात एम है! लिविंग माई ड्रीम। अरे वाह! और पीपल लव मी एज a स्टोरी टेलर, दे तो सर, लव मी व्हेन आई रिसाइट स्टोरी। तो मैं कैसे ना प्यार करूं लोगों से। हाय 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 हाय। दे आर मेकिंग मी living my dream, they are making me feel top of the world.
So I am living my life here because of the people. अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। मेरे तो इंटरेक्शन यही खत्म करता हूँ मैं, नहीं तो सब कहेंगे सर ही सब कुछ पूछ रहे हैं। अभी आप लोग भी पूछ लो, हीरो आया हुआ है, ही इज एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट। और Yes, sir. और कॉम्प्लीमेंट से चैट बॉक्स भरा हुआ है। हीरो, अगर टाइम मिले तो वो पढ़ लेना, कॉम्प्लीमेंट से भरा हुआ है। किसी ने ये नहीं लिखा कि आप खराब बोले, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, आप यहाँ क्यों आए, मुझे क्यों बुलाया, ऐसा किसी ने नहीं लिखा। सबने इतने अमेजिंग Thank you लिखे हैं, so much. एंड वी आर रियली अमेज्ड। अभी तो आपने शुरुआत की है, कहते हैं ना, अभी तो जस्ट आपने ठीक मारी है कि मैं आ गया, और अभी इतना प्रभाव आ गया, देखो आप। Wow, thank you. Yes, Shari sir, can I ask something? जी जी, Thank you so much. First of all, thanks a lot for organizing this event, and I'm a big fan of storytelling. तो थैंक यू सो मच हर लोग, बहुत ही अच्छा स्टोरी सुना है आपने। मेरा क्वेश्चन आपसे तो नहीं, सजेशन चाहता हूँ कि अभी नेक्स्ट मंथ मुझे एक ऑर्फन एज में 11 से 15 साल के बच्चों को स्टोरी टेलिंग करनी है, उसको स्टोरी सुनानी है। तो मैं चाहता हूँ अगर आप मुझे 2-3 टिप्स दे देते हैं कि किस तरीके की स्टोरीज मुझे उन्हें सुनानी चाहिए, क्योंकि एक एज लिमिट है, तो उस पर थोड़ा सा अगर कुछ आप मुझे सिखा देते तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। मतलब पंचतंत्र की कहानियां लीजिए, ओके, है ना, और ना वहां पर जाकर ना बच्चे बन जाइए, उनके बीच में जाकर कहानियां सुनाइए। देखो वो शेर दिखा तुम्हें, जब आप अपने आप को खोल लोगे ना तो वो आपके साथ बन जाएंगे। और जब वो बंद जाएंगे ना, और उन्होंने अगर किसी एक बच्चे ने ये बोल दिया, हाँ भैया दिख गया, बैंग, यू आर अ स्टोरी टेलर। दिख गया भैया, मैं तो दिख गया। थैंक यू सो मच हरलोक, दैट्स रियली Okay, all the best for the storytelling session. Okay, So I if you think Tavleen, yeah, Tavleen yes. wanted to ask something. Yeah, सर अगर हम Tavleen, please go ahead. स्टोरी में अगर हम वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज नहीं करेंगे तो क्या वो स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी? अगर आप वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी स्टोरी एकदम सपाट होगी, जैसे इस वक्त अभी मेरी आवाज है। क्या आपको मेरी आवाज सुनने में बिल्कुल भी मजा आ रहा है, या आपको ऐसे सुनने में मजा आएगा? है ना? तो वॉइस मॉड्यूलेशन इज लाइक अ मसाला। अगर खाना बनाते वक्त हम नमक ना डालें, मिर्च ना डालें, और पानी में सब्जी उबाल कर दे दें, तो मैं तो कभी नहीं खाऊंगा, है ना? हम भी नहीं बिल्कुल। सी, वॉइस मॉड्यूलेशन इज वन ऑफ द स्पाइसेस। अच्छे से डालो, ज्यादा मत डालना वरना मुंह जल जाएगा। Amazing. थैंक यू। Herok, I would like to offer something to you. Oh wow. I really want, with all the permission of the community members, that we should keep one professional paid session from you for the entire community. मैं चाहता हूँ कि हम सारे community members जितने भी लोग हैं यहाँ पर, हम एक paid session आपसे करवाएं। तो आप इसका एक proposal प्लीज दीपक के साथ शेयर कीजिएगा, and we would love to attend your session. और जितने भी लोग यहाँ से, मतलब ये आप खास पीएसआई कम्युनिटी के लिए तैयार कर सकते हैं। हम सबको आप स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क सिखाएं, तो अगर ऐसा कुछ आप कर सकते हैं हमारे लिए, वी विल बी ग्रेटफुल टू यू। जी डेफिनेटली। मैं एक्चुअली मैं आपसे बात करता हूँ इस बारे में। हाँ ठीक है, आप मतलब अभी जो भी अभी आपका कोई रनिंग वर्कशॉप है, आप प्लीज वो भी बताइए हमें, ठीक है? किसी को अटेंड करना होगा वो कम्युनिटी से आके अटेंड करेगा। और सेकेंडली, आप हमारी कम्युनिटी के लिए एक अलग से आप करना चाहते हैं इनिशिएटिव, जिसमें हम यू कैन टेल अस व्हाट इज योर प्रोफेशनल चार्ज, और हम सारी कम्युनिटी उसको मिल करके अटेंड करें, तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। क्योंकि मेरा जो सपना है पीएसआई कम्युनिटी बनाने का, वो ये है, सिर्फ हम इसको फ्री नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि जो वैल्यू आती है ना वो पेड सेशन में आती है, क्योंकि फिर जो स्पीकर होता है वो अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाता है, ठीक है ना? सो बीइंग अ ग्लोबल स्पीकर, मैं एक चीज को समझता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अभी हमने आपका 15-20 मिनट सुना, तो हमें ऐसा लगा कि यार हमें और सुनना चाहिए, मतलब दिस इज जस्ट माय व्यू। तो मुझे लगा कि अगर अभी ऐसा लग रहा है तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो कैसे होगा, ये भी बड़ा एक
सोचने वाली बात है, तो क्यों ना आपसे सीखा जाए और सीखा जाए, और सीखने में बुराई थोड़ी ना है, ना सीखने के लिए कोई उम्र चाहिए। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर, डेफिनेटली। और सेशन क्या आप मेरे मतलब अगर एक इवेंट कराइए, मैं 1 घंटे की कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो वैसे ही नहीं, आप तैयारी रखना, मैं तो आपको लेकर के आऊंगा बड़े प्लेटफॉर्म पे। ऐसा MS टॉक्स का हमने इवेंट प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, तो मेरी कोशिश रहेगी आपको वहां पे जोड़ने की। बाकी क्या हम लोग सारे ना भूखे लोग हैं, भूखे नंगे लोग नहीं होते, जैसे भुक्कड़ मैं भी भुक्कड़ लोग। एकदम, ब्रेड मिल जाए ब्रेड भी खा लेंगे, रोटी मिल जाए तंदूर की वो भी खा लेंगे, घर का फुल्का मिल जाए वो भी खा लेंगे। हमें सीखना है, हमें सीखने की लालसा है। अभी रात को 8:40 पे 30 लोग आए हुए हैं यहाँ पे, क्या करने आए हैं? यहाँ पे सीखने आए हैं, सीखना चाहते हैं हम। यस सर। वो सीखने की जो चाह है ना, वो बड़ी बड़ी पावरफुल है। वाह, वो सीखना, वो इंटेंट है। तो जी इसीलिए सर। बस मैंने कहा कि मैं आपसे पूछूं, अगर आप ऐसा कुछ हमारे लिए कर पाए, आप प्लान करके अगर बताइए कुछ हो सकता है तो। वी वुड रादर लव टू हैव योर वन ऑन वन सेशन, जिसमें कि हम सारे आपके साथ दोबारा जुड़ जाएं, ऐसे ही जूम पर ही जुड़ जाए बेशक से, और जी कुछ जी, पेड सेशन भी हम करें, ओके। जी सर, है ना? डेफिनेटली। आप एक बार थॉट ले लो एंड यू कैन डिस्कस इट विद मी ऑफलाइन और विद दीपक। जी जी, बिल्कुल, डेफिनेटली सर। तो और कोई क्वेश्चंस अगर? हाँ जी। रोक सर, एक एक चीज मेरे को पूछना था, ये अगर हम शांतनु गोई के बारे में एक बार और वापस से कर लेते, थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से। दास्तान गोई, आपने दास्तान गोईया, जी ये पर्शिया से जो आई है ना। जी जी, हाँ, दास्तान गोईया। ओके। हाँ, तो दास्तान गोई, बेसिकली दास्तान गोई जो है ना, वो 2 शब्दों से बना है, एक दास्तान और एक गोई। दास्तान इज स्टोरी, गोई इज बोलने वाला, तो स्टोरी टेलर। तो ये उर्दू शब्द है, ये पर्शियन शब्द है जो पर्शिया से आया था 14th सेंचुरी के वक्त। तो जब ये आया तो हिंदुस्तानी रंग में रंग गया। उस वक्त जब आया था तब अलग ही रंग में था। अब जब हमारे हिंदुस्तान में आया तो हमने इसको अपने रंग में रंग दिया, और क्या रंगा। मैं आपको बताता हूं, इसका इतिहास ये है कि ब्रिटिशर्स ने दिल्ली से दास्तान गो को भगवा दिया था। जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, जो जामा मस्जिद है, वहां पर लोग दास्तान सुनने स्पेशली जाया करते थे संडे को। 19th सेंचुरी की बात बता रहा हूं मैं। तो वहां पर किसी ने ये बात बताई, वो एक्चुअली हिंदुस्तान के वीर वॉरियर्स की कहानियां सुनाया करते थे, तो जिससे उनके अंदर ना एक जज्बा आता था, पैट्रियट फीलिंग आती थी। तो अब ये आइडिया ही देखिए कि क्या जबरदस्त तरीके से वो हमारे अंदर एक मशाल जलाते थे। जब ये बात अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने सबसे पहले स्टोरी टेलर्स का पत्ता काट दिया। उन्होंने दिल्ली से सारे दास्तान को भगा दिए। लखनऊ में दास्तान गो हुआ करते थे, वहां से सबको बंद करा दिया। तो अगर आप ढूंढेंगे तो आपको 19 सेंचुरी से लेकर, मतलब 19 सेंचुरी के बीच में कहीं इक्का दुक्का दास्तान गो के बारे में पता चलेगा। 2004 में महमूद फारूकी साहब हैं जिन्होंने अपने चचा के साथ मिलकर इस फन को, फन इज अ उर्दू वर्ड ऑफ आर्ट, इस फन को जिंदा किया और वो फिर से इसको तैयार करके लाए। अभी हिंदुस्तान में बहुत कम दास्तान गो हैं, मैं नहीं हूँ। महमूद फारूकी साहब ने सबको सिखाया। मेरी गुरु जिनसे मैंने सीखा है, दीप्ति पंत, वो दास्तान गो है। एक बहुत ही जबरदस्त दास्तान गो हुआ करते थे जिनकी मैंने कहानी आज पढ़ी, वो सत्य और कहानी वाली। उनका नाम अंकित चड्ढा था। वो 2018 में चले गए हमें छोड़कर। तो बहुत कमाल के होते हैं दास्तान गो। आप अगर दिल्ली के आसपास कहीं हैं या कहीं पर भी हैं, जरूर सुनिए, एक अलग ही तब्दीली आएगी आपके अंदर। ग्रेट सर, ओके। ऑसम। तो कोई और क्वेश्चन मेरे लिए? हीरोक सर, मेरा क्वेश्चन नहीं है, पर मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
Yes, वो sir. इसलिए क्योंकि मैं आज काफी भारी दिन था ऑफिस में मेरे लिए, और काफी थका रहा। मैं 8 बजे घर पे आया था, पर जैसे दीपक भाई का मैंने मैसेज देखा कि लॉगिन करो, तो मैं सोच रहा था कि लॉगिन करूं या ना करूं, बिकॉज आई वांटेड टू स्लीप। लेकिन सर आपका ये परफॉर्मेंस देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा लाइट फील कर रहा हूं मैं, और आई एम ग्लैड कि मैंने आपका सेशन अटेंड करा, एंड आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स बेसिकली to watching you and to listening to your story, which is really amazing. Just want to say thank you to you. Thank you so much, Kapil sir. Thank you so much. Wow. You made my day. Thank you so much. You made us our day, sir. Thank you. Wow. Sir, you have made a day for everyone. जैसा कि आप कहते हैं कि you often imagine yourself as a superpower, power of switch between different reality rather, power to control the matter so that you can fly. Sir, Yeah. you are already a Superman. Oh, thank you so much. I'm learning. जैसे Anybody Shelly else? का. Yeah. Sir, I have a question. Yes, sir. Yes, please. What do you think is better? It is to narrate a story that already exists and convey our ideas through that, or build a story of our own according to the ideas that we want to express. Am I able to explain it? Yes, definitely. So it's a beautiful question actually. मैं कई बार ऐसे हालात में पहुंचता हूं, तो उस वक्त मैं क्या करता हूं, जब भी मुझे आइडियाज़ चाहिए होते हैं, जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि हीरो, यू नीड टू राइट समथिंग अबाउट एसिड अटैक। तुम्हें एसिड अटैक के बारे में कुछ लिखना है, एक्चुअली तुम्हें कहानी लिखनी है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या मैं कहानी पढूं, कहीं ढूंढूं जाकर, या फिर मैं खुद क्रिएट करूं। तो खुद क्रिएट करने में ये होता है कि आप जब खुद क्रिएट करने लगते हैं ना, तो आपको ना अलग-अलग रास्ते से जाना पड़ता है। जैसे मैं गया था, आई स्टार्ट वॉचिंग वीडियोस ऑफ एसिड अटैक पीपल, उनकी कॉन्वर्सेशन, उनकी बैकग्राउंड स्टोरी, मैंने मूवी देखना स्टार्ट किया। तो उन सबको मिलाकर ना मेरे दिमाग में वो इकट्ठा हो गया, और फिर अब मेरे दिमाग में एक कोर आइडिया तो था कि आई नीड टू राइट द स्टोरी रिगार्डिंग एसिड अटैक, और मेरे दिमाग में ये था कि मैं ना अबला नहीं दिखाऊंगा। आई रियली वांटेड टू शो समथिंग स्ट्रॉन्ग। तो मैं जब उसको लिखने लगा ना, और वो सारा मैटर जब मैंने अपने दिमाग में इकट्ठा कर रखा था, वो मेरे हाथों से होता हुआ मेरी पेन की स्याही से निकलकर मेरे कागज पे उतर गया। और वो कहानी, क्या गजब कहानी मैंने लिखी थी। वो आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि यार, मैं उसको सुनने के बाद मैं खुद सोचता हूँ यार ये मैंने लिखी थी। तो वो कमाल होता है कि आप कितना रिसर्च कर रहे हैं उस चीज पर। अगर आपके पास आइडिया है कि आप ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, फिर तो आप रिसर्च करिए, क्या जबरदस्त कहानी आएगी, देखिए आप। होपफुली मैं आंसर कर पाया सर आपका क्वेश्चन। Thank you very much. जी सर। थैंक यू रोहन जी। एंड अब सारे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एक पोल आ रहा है। सबको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रा अपना वोट डालिए। और क्वेश्चन सेम है, हाउ एंगेजिंग वाज द सेशन अकॉर्डिंग टू यू? रेट 1 to 5 where 1 is the least and 5 is the highest. Sorry? I would want to say कि आज पोल की जरूरत नहीं है, unanimous, the best session. I know. Goes without saying, Sonuji. Yes, I agree. Wow. Thank you. Great. Tirok ji, everybody loved your performance. सब लोग अभी तक भी स्तब्ध है। क्या कहते हैं हिंदी में? पता नहीं, बट इंग्लिश में mesmerized. Mesmerized. Wow, beautiful word. Yeah.
तो सर सब लोग ना So बस thank you so आपके much, कायल हो गए. everyone. हाँ. अरे शुक्रिया. And बहुत- Sherry sir, Sherry yes, sir, yes, Deepak. I would request you, I would request you to please felicitate Mr. Pal. Sure, Herok, for your outstanding efforts, we cannot reward you much, but on our request, you have taken out the time and you have presented so wonderfully. So please accept our heartfelt gratitude and this digital certificate for you and for your records. This is to acknowledge your excellent speaking session on storytelling today on behalf of the entire PSI global community. Thank you very much. May I request all the members to please unmute and clap for our speaker and trainer of the day. Thank you very much. We are really honored. Thank you so much. Thank you, Harok. Wonderful session. And I request Deepak to take it forward for the public speaking का तड़का. बहुत लोगों को पता ही नहीं है public speaking तड़का हम क्या कर रहे हैं. आज बहुत सारे लोग हैं तो उनको जरूर बताएं. आज हेरोक भी देखें कि ये public speaking तड़का क्या है. And before that, I would like to invite Super Suresh. He has done some creativity. I don't know. He wants to share something. Over to you, Super Suresh. Yes, sir. Yeah, I was also going to invite him. Yeah. But it's a gratitude for all our trainers every Thursday. Thanks for giving your valuable time, your effort, your knowledge, and making us to learn every Thursday. Now, last Thursday the numbers were very less, but this Thursday it has doubled, 30. It's amazing, and so because of that, it's a honor that we wanted to give gratitude to all the trainers who were from the first week when we were planning for it. So thank you very much. And I'm just going to quickly share a video. It's hardly going to take 30 seconds. Deepak brother, I think you have to give me access to share the screen. Could you please give me that access? I've given it to you. You already have it. Okay. But I can't able to share it. I've shared you the link. Can you please share that from your end? Let me just. Let me do check. that, Super Suresh. I guess Wait. I also have the link. Let me Yes. टाइम की कभी कभी चीज नहीं चलती ना, बड़ा अजीब सा लगता है. चल क्यों नहीं रही? अभी तो चलना चाहिए था. इतना मैंने माहौल बना दिया, अब ये चल नहीं रही. पहले माहौल बना दिया मैंने, सबको बोल दिया, अब ये चल नहीं रही. अब मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है. मैंने भी बोल दिया था एक्स्ट्रा कि मैं चला देता हूँ. अब लिखा आ रहा है नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट, प्लीज ट्राई अगेन. ठीक है, मैं एक मिनट ट्राई करता हूँ सर अपने एंड से भी. हो गया जी, यहाँ पे हो गया. Oh, great. I'm sharing the screen now. Got it. I hope the screen is visible to all of you. Yes. Okay, awesome. Yes. Okay, all right. Yes. All right, playing the video. Created by Super Suresh for all the community members.
Thank you for this beautiful gesture, Super Suresh. Means a lot. Can we have public speaking ka tadka? Over to you. Yes. Thank you. Yeah. So everyone, now we welcome everyone to the special section of ours, public speaking का तड़का. ना पब्लिक स्पीकिंग का तड़का है क्या? आप लोग भी सोचते होंगे. बट जब भी हम कहीं से कुछ बात करते हैं या कहीं पे कुछ जाते हैं, कहीं पे कुछ सुनते हैं या कहीं पे कुछ सुनाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हम ऐसा ज़रूर करते हैं जिससे कि या तो सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है या उससे हम इम्प्रेस हो जाते हैं. अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब है कि कुछ तो काम कर रहा है. तो अगर ये जो काम कर रहा है ये आपको लगता है कि वायबल है, लोगों को बताना चाहिए कि हाँ ये मैंने सीखा या ये मैंने सिखाया, और यही चीज़ आप कम्युनिटी पे शेयर करेंगे तो यकीन मानिए ना सिर्फ आप अपने लिए बेहतरी कर रहे हैं, आप दूसरों को भी मौका दे रहे हैं वो जो कड़ी मिसिंग है उसको जोड़ने के लिए. और जैसे ही वो कड़ी जुड़ेगी लोग अपने आप बेहतर से और बेहतर हो जाएंगे. सो आई विल रिक्वेस्ट एनीवन फ्रॉम द मेंबरशिप टीम ऑफ आवर्स to please come forward and share their own personal public speaking ka tadka. I'll count 5. Yes, Dr. Yumna wants to share. Yeah, Mr. Nelson, please. Yeah. I've been trying to learn a lot of things, but a very striking thing I learned about public speaking is the use of pauses. So, like from Author Sirisha, I learned that it's quite effective, useful. But I recently learned that while using a pause, you can stop all your actions, gaze at that moment for how long you want. So with the pause of the voice, you can pause your action, your gaze, everything, and catch hold of all the attention. So that is the point which I wanted to share. Thank you. Very well said, Yumnam sir. Thank you. Deepak, I would like to add on something. Yes, please. As a contributor now. Sir, ये तो सब लोगों के लिए आशीर्वाद की तरह है. My pleasure. So you see, you might have seen people playing football. How many of you football soccer fans over here? Or someone maybe a basketball fan, or somebody maybe a badminton fan, or somebody a cricket fan. There is something called reflexes. So the moment you are sharp in your reflexes, what happens is that the moment things come your way, you know, your hand knows it how to strike, or your legs knows it where to run for the ball to hit upon. Any game, reflexes. Cricket, Virat Kohli, Sachin Tendulkar, Virendra Sehwag, or the likes of Alan Border, Ravi Shastri, Yuvraj Singh, Brian Lara. You know why these batsmen are great? One simple reason. Their reflexes were so sharp. And how did they make the reflexes so sharp? मतलब बॉल जब उनके पास आ रही है तो उनको पता है इसको ऑफ पे मारना है या ऑन साइड पे मारना है, इसको पीछे मारना है या इसको स्क्वायर कट करना है या इसको कवर ड्राइव मारना है. ऐसे कैसे पता लग जाता है? रिफ्लेक्सेस. There is an innate ability inside all the human beings, and it is gifted to all of us. Fortunately or unfortunately, we all use it in our professional work or in our businesses or in our jobs. But what about public speaking? I think many of us are not aware. So I want to share with you that in public speaking also, reflexes works. Did you notice how Herok was performing in the session today? He was effortless. Stories were just oozing out from his stomach, his mouth. He was expressive. My gosh, he has stunned all of us. Now that is reflexes. When things are coming on auto mode from your body, from your different body organs, you are in the position to create reflexes. And this is the reason when you see a lot of public speakers on the stage, they are effortless.
they don't have to bother how I will look like when I will express myself with my emotion, with my feeling, with my facial expression, with my gestures, with my movement, with my voice modulation, with my voice range. And that is what makes them effective public speakers. So reflexes. And if you really want to increase your reflexes in public speaking, all you need to do is speak more. Thank you. Amazing, sir. Thank you very much. So with this, we come to an end, unfortunately, for today's session. I would once again like to thank Mr. Herakpal for his lovely session and making us all mesmerized. And I have one announcement to be made with the permission of Author Sherry, sir. And next week, Thursday session, we have someone from our own community, and he is none other than our super energetic, super awesome, super bro, Mr. Super Suresh G. Wow. So I would thank you, super bro. Where are you? Super Suresh. Yes, I'm in. Super Suresh, what topic you are taking? Are you going to make us cry? Are you going to make us smile? Or what are you going to do? And my topic is going to be self-energy healing for blissful life. So how to heal oneself. And because this situation, this time, people are going so crazy and always thinking about something is not so working good for them. So everything is within us. So I started preparing because I know that this week 30, next week it is going to be 60 as well. Our community, official community members are more than 90 plus. So I expect everyone's love and your blessings to be there next Thursday. And I want to see all these beautiful faces, not just the names on the screen. Every one face has to be there. I want everyone to be there. Very true, sir. Very well said. Looking forward. Yeah. Thank you very much. Yeah. On this note, wish everyone a wonderful weekend. Herok wants to add on something, Deepak. Yes, Herok ji. Actually, I just wanted to, with the permission of Sherry, sir, obviously, I'm a storyteller for kids as well, and I run a YouTube channel. I shared the link here. Please share the link with your kids. I do specifically storytelling for kids in this YouTube channel. Yeah. Super awesome. No. Everybody Thank you. subscribing there. तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है ये चैनल. जरूर जरूर. हेरोक एक बार वैसे बोल दो. दोस्तों मेरा चैनल आ गया है आपके स्क्रीन पर, मेरे चैनल का लिंक आ चुका है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. ऐसे कुछ बोल के दिखाओ ना, तो एंटरटेनिंग, यू नो, लेट्स एंड ऑन एंटरटेनमेंट. ओके. तो देखो, ऐसा है कि जंगल की सैर हम घर पे बैठ के तो कर नहीं सकते, पहाड़ों पर हम चढ़ नहीं सकते, कालीन पर हम उड़ नहीं सकते, हवा में चांद को हाथ से पकड़ नहीं सकते. तो इसलिए मेरे चैनल पर आइए और मैं आपको वादा करता हूं कि ऐसी ही खूबसूरत जर्नी पर अपनी कहानियों की ट्रेन में बिठाकर ऐसी ऐसी जगह लेकर जाऊंगा कि जब आप वापस अपने घर पे अपनी चेयर पे बैठकर उस कहानी को खत्म कर चुके होंगे तो आपको लगेगा, ओ माय गॉड, अगला एपिसोड कब आ रहा है. अब तो करना ही पड़ेगा. क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू सो मच. क्या बात है सर. कमाल हो आप. Thank you. I saw someone is asking for my contact number. हेरोक, आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करो प्लीज. वी आर गिविंग फ्री हैंड टू एवरीबॉडी. अपना काम धंधा भी देखना भाई, फ्री सेशन तो अपना ठीक है, काम धंधा भी देखो, अपना मोबाइल नंबर शेयर करो. And if somebody is keen to book you for anywhere, we would be more than happy to offer those things to you. Yeah. And Deepak will also get in touch with you, so you can save Herok's number. Thank you very much, Herok, for coming. Over to you, Deepak. Thank you very much, sir. Sir, I have a question from sir. I'm sorry, I'm interrupting you. Richuji, little bit. Very short. Yes. Huh? Yeah. Okay. Yeah, just a small question from Hirok sir. Sir, do you also conduct a storytelling session for kids as well? Yes, I do. Then I definitely looking forward to that. So I will get in touch with Deepak sir for more details.
Yeah, you can connect with me. Yeah. I have channel for specifically for kids. Actually, I shared that link. Yeah, the link Share is it there. again. Sure, sir. I will definitely get in touch with that. Thank you. तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को, प्लीज एंजॉय कीजिए, स्पेशली जो लोग दिल्ली में हैं। कल से लॉकडाउन लग रहा है, तो पूरा सैटरडे संडे फैमिली के साथ थरली एंजॉय कीजिए। और जो लोग बाहर भी हैं, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये टाइम है फैमिली टाइम, और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और मजे लीजिए। सो नेक्स्ट थर्सडे फिर मिलते हैं एक और सुपर एनर्जेटिक सेशन के लिए। टिल देन, बाय एवरीवन। Bye. Bye bye. Bye everyone. Good night. Thank you, Deepak, Good night. for Good such Thank you night. so awesome much hosting. once again. Awesome. everyone. Awesome, Thank Deepak. you everyone.